Good morning and a very warm welcome to all the viewers on Doordarshan Sports as we bring you this morning live show Sports Cafe. I'm your host Arjun, and joining me in the studio is our eminent sports expert and senior sports journalist Shri Sanjeev Kumar. Sanjeev ji, a very warm welcome to you on the program. Thank you very much. Good morning आपको भी और तमाम देखने वालों को भी. Well, we are privileged to have Sanjeev Kumar ji, who is a sports editor with the Navbharat Times. And we have stories across the board, starting with cricket, moving on to boxing, badminton and chess. And for that, let's begin our program now with the top headlines. Yuvraj 62 helps Sunrisers Hyderabad beat Virat Kohli less RCB by 35 runs in the opening game of the IPL 10. India hold on to 4th position in the ICC ODI ranking, 7 points behind top-ranked South Africa. Sham Rohit enter semi-finals, assured 2 medals at Thailand International Boxing Tournament. PV Sindhu, Saina Nehwal crash out in round 1 of Malaysia Open. Ajay Jairam advances. Well, those were the top headlines. Let's begin our program now with the story segment, beginning with Yuvraj Singh 62, which helped Sunrisers Hyderabad win the match against their opponents, Royal Challengers Bangalore, without Virat Kohli. And let's look at the press coverage for that. UV's fireworks light up opener. Slam 62 of 27 deliveries mailed today, covering this news. Sunrisers Hyderabad begin in champion style, winning by 35 runs against their opponents, Royal Challengers Bangalore. Times of India. Hindustan Times, Yuvraj Henriquez rock challengers. Let's not forget that it was also a 40 by Shikhar Dhawan in this scoring by Sunrisers Hyderabad. Indian Express, first day, first blow, a clockwork orange. दैनिक जागरण, सनराइजर्स की चैंपियनों जैसी जीत. हिंदुस्तान हैदराबाद ने बेंगलुरु को हरा दमदार शुरुआत की. अमर उजाला, पहली मैच में यूवी का राज, 62 राउंड्स और 27 डिलीवरीज. दैनिक भास्कर, युवराज ने दिलाई हैदराबाद सनराइजर्स को पहली जीत. Well, IPL 10 has now gone underway, and let's ask the question to Sanjeev ji. Sanjeev ji, युवराज के जो 62 runs थे, that ensured that they scored 207 runs. They won the match with 35 runs. But एक ऐसा stage था, the opening wicket by Bangalore with Chris Gayle and his partner, 52 runs for the first wicket and 56 runs for the third wicket. ऐसा लग रहा था कि शायद they will overhaul the total. But जो collapse आया है वो किस तरह से आया? देखिए, जब आपको 200 रन बनाने होते हैं 20 ओवर में, तो यानी आपको हर ओवर में 10 रन का एक टारगेट लेके चलना होता है. और जैसे ही 3-4 डॉट बॉल्स चली जाती हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल पेश आती है. और तारीफ़ करनी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें, जहाँ से पिछले साल को ये टूर्नामेंट ख़त्म हुआ था, वहीं से लगता है शुरुआत हुई, क्योंकि इन दोनों के बीच हुआ था. वहाँ भी 208 रन बने थे. हालांकि तब 200 रन बनाए थे आरसीबी ने, 8 रन से ही हार हुई थी. यहाँ आप देखें कि युवराज सिंह की इनिंग्स का बहुत महत्व रहा, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला और बाद में उन्होंने 27 बॉल पे 60 प्लस रन बनाना. अब एक आपकी टीम का टारगेट ऐसे ही बहुत ज़्यादा आप बढ़ जाता है. दूसरी तरफ जब मैं कह रहा था कोलैप्स की बात, तो बॉलर अगर देखें उनकी तरफ, तो हैदराबाद के पास पिछले साल के जो बेस्ट बॉलर थे, भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, वो हैं. आशीष नेहरा जैसा अनुभवी बॉलर, जो कि अभी भी 38-39 की उम्र है, उन पर रिलाय इसीलिए किया जा रहा है कि सिर्फ 4 ओवर डालने हैं और उनके पास सारे आर्सेनल, सारे उसमें जो है कि अस्त्र शस्त्र है कि किस तरह से आउट किया जाता. तो इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही और दबाव आता चला गया 10 रन प्रति ओवर जो बनाना था उसका. Well, that's the latest action from IPL 10. We will now look at the next match coming up between rising Pune Super Giants and Mumbai Indians. Let's look at the press coverage for that. Tough task for RSP against Mumbai Indians. Mail today. Steve Smith will be captaining the side, and Mahendra Singh Dhoni will be the non-playing captain in this side. Times of India. Smith's Pune up against mighty Mumbai.
Hindustan Times. Opening blues, Mumbai want to begin well. All's well. Smith seeks out Dhoni for advice. Dhoni will be playing this match as a player, not as a captain. Dainik Jagran. Super Giants देंगे Indians को टक्कर. अमर उजाला. Super Giant के सामने मुंबई का चैलेंज. Well, the next match is always exciting after the first match, which was won by Sunrisers Hyderabad. अगले मैच में मुंबई इंडियंस की तरफ से लसित मलिंगा नहीं खेलेंगे, तो किस तरह से आपको लगता है जो बॉलिंग अटैक में जो पेनिट्रेशन नहीं है, उससे क्या पुणे उसका एडवांटेज लेगा? देखिए, पुणे का होम ग्राउंड पे मैच है और बेशक धोनी कैप्टन नहीं होंगे, लेकिन धोनी बैकग्राउंड में ज़रूर रहेंगे एज ए विकेट कीपर. कोई भी टीम में अगर खेलता है तो विकेट कीपर से कैप्टन अक्सर पूछते हैं किस तरह से गेंद आ रही है, क्या कुछ करना चाहिए. अगर कैप्टन नहीं भी होता है विकेट कीपर, तो यहाँ पर विकेट कीपर भी धोनी होंगे. इतना सारा अनुभव, शायद 140-45 मैच के बाद वो कैप्टनसी नहीं करेंगे. 8 साल 9 साल वो लगातार वो कैप्टन रहे. और लेकिन यहाँ है कि स्मिथ का कहना है कि उनको एडवांटेज है और वो बहुत ही उनसे पूछते रहे हैं किस तरह से क्या. और स्मिथ भी पहली बार नहीं खेल रहे हैं, उनके पास भी आईपीएल खेलने का अनुभव है. और जब वो होम ग्राउंड पे खेलेंगे, मुझे लगता है कि एडवांटेज उनके पास होगा. और आपने जहां बॉलिंग की बात की, मलिंगा जरूर नहीं है और पहले से पता था कि वो नहीं होंगे क्योंकि वो नेशनल ड्यूटी पे हैं. तो बैटिंग पे रिलाय कर रहे हैं लाइक किरण पोलार्ड एंड लेंडल सिमंस, जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं. अब बैटिंग पे करना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम बॉलिंग अगर आप देखें तो उनके पास बुमराह अगर खेलेंगे, पांड्या खेलेंगे, इसके अलावा आपके मिचेल जॉनसन है इतने अनुभवी, पोलार्ड भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बीच के ओवर्स बहुत अच्छे डालते हैं वो. तो उनके पास ऐसे बॉलिंग की भी बॉलर्स की कमी नहीं है. और उधर देखें अगर पुणे के पास अच्छे बैट्समैन हैं, उनके पास भी और बॉलर है. ओवरऑल एक अच्छा कंटेस्ट देखने को मिलेगा. और सबसे दिलचस्प बात है कि महाराष्ट्र की दोनों टीमें हैं, पुणे और इधर मुंबई, तो वहाँ भी जो फैन फॉलोइंग होगी आधा आधा बटा होगा. हालांकि थोड़ा होम एडवांटेज होगा क्योंकि उनके घर पे मैच हो रहा है, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा पुणे को. एक दिलचस्प मुकाबला होगा. ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि अभी आज की तारीख में थोड़ा सा एज है पुणे को, बट एकदम से एडवांटेज है पुणे के पास, ऐसा नहीं कहा जा सकता. संजीव जी, बिफोर आईपीएल 10 जो तमाम इंजरीज आई हैं इंडियन नेशनल प्लेयर्स को, तो ऐसा लग रहा था कि शायद IPL 10 will be a dampener, पर ऐसा नहीं हुआ है. It's had a great start to the tournament. Viewership has gone up. देखिए, पहला मैच था, इतने सारे रन बन गए क्योंकि रन देखना चाहते हैं लोग कि चौके छक्के बहुत सारे लगे. और प्लेयर नहीं खेले तो उसमें युवराज सिंह खेल रहे हैं. युवराज सिंह के उम्र पे मत जाइए, उन्होंने जिस तरह से खेला वो एक चैलेंज है. अब इससे आगे बढ़ना है प्लेयर्स को. और बेशक बहुत सारे प्लेयर, तकरीबन 20 प्लेयर नहीं होंगे इस बार, जो अलग अलग टीमों से, अलग अलग देशों से है. इंडिया के बहुत प्लेयर्स हैं इसमें, तो थोड़ी सी जो उनके फैंस होते हैं उनकी अगर कहें दिलचस्पी कम होती है. बट इस तरह से शुरुआत होगी तो फिर एक के बाद एक रन बनेंगे तो लोग फिर वापस आते ही हैं. Well, from T20, let's look at India's rankings in the ODIs for the ICC. Let's look at the press coverage for that. India 4th in the ICC's ODI table. That is the coverage in the Times of India, and they are 7 points behind South Africa. Hindustan Times, India stay at number 4 in ODI, ranking South Africa on top. 112 rating points for India. Dainik Jagran, Bharat चौथे स्थान पर कायम. हिंदुस्तान, भारतीय टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर. अमर उजाला, वनडे टीम रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर. Looking at the ODI rankings by the ICC, how fair is it? South Africa on top, India in 4th place. So much ODI being played. यस, अगर आप देखें तो इंडिया ने पिछले 2.5-3 महीने से नहीं खेला ओडीआई, टेस्ट मैच ही खेल रहे लगातार. बावजूद इसके चौथी पोजीशन पे हैं. इसका मतलब है कि जो पिछले उन्होंने एक्यूमुलेट किया था, जो पॉइंट्स जुटाए थे, वो इतने काफ़ी थे कि वो बहुत नीचे नहीं गए. और अगर देखें तो टॉप से 7-8 अंकों का फ़र्क है, तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है. अब ये चैंपियंस ट्रॉफी में जब उतरेंगे, सारी टीमें एक साथ उतरेंगी, वहाँ पर फिर से पॉइंट्स मिलेंगे और वहाँ से एक सिलसिला शुरू होगा
ऊपर नीचे जाने का, और इंडियन टीम डिफेंडिंग चैंपियन होगी तो उसके पास पूरी संभावना है कि एक बार फिर से टॉप पे आए, और ये अगर ये वहाँ जीतते हैं चैंपियंस तो ट्रॉफी। विराट कोहली हैज बीन रूल्ड एज अ लीडिंग क्रिकेटर बाय विजडन, तो यहाँ पे जो हमारी रैंकिंग्स हैं टेस्ट एंड ओडीआई में, तो विराट कोहली हैज हैड अ रोल टू प्ले एज कैप्टन। बिल्कुल, ओवरऑल अगर आप देखें तो टेस्ट मैचेस में उनके कप्तानी में पिछले सीजन में 13 टेस्ट मैच खेले, 10 जीते, सिर्फ एक हारे, 2 ड्रॉ रहा, और ये एक बहुत रेयर उपलब्धि है। और जिस तरह से टॉप पे पहुँचे, और ऐसी परिस्थितियों से आप उबर के आए जहां आप पीछे चले गए, फिर से आपने रिकवर किया और बाउंस बैक किया। ये अक्सर हुआ है, चाहे आप टॉस हारने के बाद आपने, या टॉस जीतने के बाद कम रन किए, उसके बाद में सेकेंड इनिंग में वापस आए। तो ये कैरेक्टर दिखाता है कि ये जो यंगस्टर्स हैं हमारी टीम में, विराट कोहली का जो एक अटैकिंग एटीट्यूड है और उस तरह से कैप्टनसी करते हैं, उसकी तारीफ भी होती है, आलोचना भी होती है। बट अगर फ़ायदेमंद है तो आपने कहा रोल उनका रहा है, फ़ायदेमंद है तो फिर आलोचना का कोई मतलब नहीं बनता है। भारतीय टीम अच्छा कर रही है और विराट कोहली अस्वस्थ है, हम यही कहेंगे कि वो स्वस्थ हो और फिर से लीड करें अपनी टीम को। Well, Virat Kohli out because of a shoulder injury and not playing in that Royal Challenger Bangalore game against their opponent Sunrisers Hyderabad in the opening match of the IPL 10. Next up is a contact sport of boxing, this time in Thailand, where Indian performance has been fair. Let's look at the press coverage on that. India showed the medals in Thailand. Indian Express with the two boxers Shyam Kumar and Rohit Tokas in the semi-finals. Dainik Jagran, Shyam Rohit ke padak pakke, both in the semi-finals, 49 kilogram weight category and 64 kilogram weight category. Hindustan, Shyam और Rohit में पदक पक्के किए. Disappointment being Manoj Kumar, who lost out in the welterweight quarterfinals. Amar Ujala, boxer Shyam semi-final में. तो श्याम एंड रोहित नाउ इन द सेमीफाइनल्स शोड ऑफ अ मेडल, क्योंकि दोनों सेमीफाइनलिस्ट जो हैं उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है इवन इफ दे लूज अ सेमीफाइनल बाउट। तो यहाँ पे आप इस प्रदर्शन को किस तरह से देखेंगे? और मनोज कुमार जो हारे हैं, वर यू डिसअपॉइंटेड? बिल्कुल, देखिए रियो ओलंपिक्स में जब वो हारे थे, उसके बाद से उन्होंने कुछ टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है, बट वो मेडल नहीं जीत सके हैं। और ये एक उनके इंडिविजुअली और देश के लिए भी और बॉक्सिंग फैंस के लिए भी एक निराशाजनक बात है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखें आप, तो ये श्याम और रोहित लगातार अच्छा कर रहे हैं। और ये जो थाईलैंड ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, ये बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत पुराना है। तो यहाँ मेडल जीतना चाहते हैं। ये कोई कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या कोई वर्ल्ड कप नहीं है, बट लोग जो बॉक्सर्स होते हैं, जो 3-4 बड़े टूर्नामेंट्स हैं बॉक्सिंग के, उनमें से एक है, वहाँ जाके जीतना चाहते हैं। तो और अच्छी बात है कि मनोज वहाँ तक पहुँचे, बट वो आगे अगर सेमीफाइनल में पहुँचते तो और अच्छा होता उनके लिए भी। बट ये दोनों बॉक्सर्स लगातार अच्छा कर रहे हैं, यही नहीं, इसके पहले भी उन्होंने 1-2 टूर्नामेंट में अच्छा किया है। इट्स अ गुड साइन। तो आवर स्ट्रेंथ हैज ऑलवेज बीन इन द मिडिल वेट कैटेगरीज, लोअर टू मिडिल वेट। हैवी वेट में वी हैव नॉट डन वेरी वेल, बट अगर हम आगे चलते हैं तो कोई आर देयर एनी बॉक्सर्स हु कम टू माइंड हु विल डू वेल इन द ओलंपिक्स और द कॉमनवेल्थ गेम्स? क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ऑलरेडी बॉक्सर्स हैव टेकन एंट्री। देखिए, ये 2 नाम हमने कहा, जैसा कि क्योंकि जब ये ऐसा है बॉक्सिंग की, साल में 5-6 बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जहां जाते हैं, और हर एक चौथे साल, तीसरे साल आपको कुछ एक कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, आप उस तरह के बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, और ओलंपिक्स में चौथे साल में जाते हैं। तो वहाँ पर फिर निकल के आता है कि ये 4 बड़े बॉक्सर आए। बट इस्टेब्लिश्ड बॉक्सर्स जो हैं, हमने जैसे हमारे थापा जो हमारे बॉक्सर हैं, इसके अलावा और 1-2 मनोज कुमार हैं, ये लोग लगातार अच्छा नहीं कर रहे हैं। इधर रियो के बाद ये गए और रूल्स में बदलाव आ गया, थोड़ा सा बदलाव है। वेट कैटेगरी में भी इन लोगों, इनके हमारे जो कुछ सीनियर बॉक्सर्स का बदलाव है। जो स्टैब्लिश बॉक्सर हैं वो बेशक अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट जैसे श्याम और रोहित का मैंने जैसा कहा आपने कि नाम उभर के आता है, मैं देख रहा हूँ कि लगातार ये अच्छा कर रहे हैं। तो क्या पता आने वाले दिनों में हमारे लिए बेस्ट बेट यही हो। Well, 2 medals definitely assured in the Thailand boxing tourney, but disappointment as far as badminton is concerned. Our 2 leading badminton players, PV Sindhu and Saina Nehwal, crashing out in the first round of the Malaysia Open. Let's look at the press coverage on that.
Mail today, Sindhu and Saina crash out in Malaysia, losing out to their Chinese and Japanese opponent in a hard-fought three-game encounter. Times of India, early exit for Sindhu. Saina, Ajay Jairam advances. Hindustan Times, Sindhu Saina out in first round. Also, B. Sai Praneeth from the men's side out in the first round in the Malaysia Open. Indian Express, Sindhu Saina knocked out in round 1, especially after Sindhu won the Indian Open. दैनिक जागरण, पहली दौर में हारी सिंधु और साइना. हिंदुस्तान, सिंधु और साइना पहले दौर में बाहर. अमर उजाला, सिंधु और साइना मलेशिया ओपन से बाहर. बिग डिसअपॉइंटमेंट. संजीव जी, क्या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि हम पहले राउंड में ही एग्जिट हो जाएंगे? देखिए, ये जो तीनों प्लेयर हारे हैं, इनमें से एक सिंधु को छोड़ दें, क्योंकि उनसे थोड़े से कम रैंकिंग वाली प्लेयर थी. ये 6 है तो वो 13 जो चेन है, जो चाइनीज हैं. बाकी जो जापानीज प्लेयर जिससे हारी है साइना, वो बेस्ट प्लेयर हैं. अभी टॉप 2 में आई. अभी इस टूर्नामेंट में शायद तीसरी या चौथी रैंकिंग है उनकी. और उसके बाद लिन डैन से हारे हैं साई प्रणीत. और तो ये अच्छे प्लेयर्स से सामना हो गया. हालांकि ये हमारे प्लेयर्स बुरे नहीं हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ही राउंड में आपका सामना टॉप रैंक प्लेयर से होता है, तो वहाँ पर आपको देखिए कितना हार्ड फाउट था. 1 घंटे के करीब मुकाबला नहीं चलता है. 3 गेम्स का एनकाउंटर रहा है. 3 गेम्स रहा है और 1 घंटे 7 मिनट सिंधु का मुकाबला चला है और उनका साइना का भी करीब 1 घंटे का मुकाबला चला है. 30, 35, 40 मिनट में ये तय हो जाता है. तो इसकी वजह मैं यही देखता हूँ कि यहाँ से वो खेल के, मैंने एक तस्वीर इंस्टाग्राम पे देखी थी कि जब यहाँ से जैसे ही यहाँ टूर्नामेंट इंडिया दिल्ली में ख़त्म हुआ था, इंडिया ओपन, तो एक तस्वीर डाली थी साइना ने कि रवाना हो चुकी हूँ मैं अगले टूर्नामेंट को. तो उनको रेस्ट का मौका मुझे नहीं लगता है कि मिला होगा. वहाँ पहुँचे और अगले ही दिन वो उतर गए. आप अजय जयराम के बारे में बताइए. ही हैज एडवांस्ड टू द सेकंड राउंड. क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं, बट सेकंड राउंड काफ़ी नहीं होता है. आपको कम से कम 5 मुकाबले जीतने होंगे वहाँ खिताब तक पहुँचने के लिए, क्योंकि पहला ही मैच है. आप प्री क्वार्टर में पहुँच गए. अगर 32 प्लेयर खेल रहे हैं तो उसके बाद आपको और 4 मुकाबले जीतने होंगे. अजय जयराम के से जो मुकाबला था, जो चाइनीज़ प्लेयर हैं उनसे बहुत ज़्यादा रैंकिंग में ऊपर नहीं है, बल्कि आसपास ही है. तो वो बहुत टफ नहीं था और उम्मीद थी कि ये जीत सकते हैं. बट अगला देखना होगा कि किसके साथ है, किस प्लेयर के साथ पड़ता है. और अगर वो निकालते हैं तब कहा जा सकता है कि वो कुछ है. क्योंकि हमारे जो मेंस प्लेयर हैं, अगर आप देखें तो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल नहीं होता है. बट असल है कि आप सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचे. Well, some more bad news in chess with Jeel Shah out because he was caught cheating in chess. Let's look at the press coverage on that. Mail today, India chess player caught cheating in Dubai. Jeel Shah, a Surat-based Indian chess player. Indian chess player suspended over cheating. Hindustan Times. Very unique that Jeel Shah has been caught cheating. Let's try and understand how you cheat in chess. संजीव जी, मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ा तो I was quite surprised कि चेस में किस तरह से चीटिंग होता है. But would you say that Jeel Shah has been treated fairly? देखिए, जो खबरें आ रही हैं, जो हमें पता लगा है कि आजकल के तारीख में आप जब कैमरे लगे होते हैं, जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं और आप जो बोर्ड पे जो मूव चल रहा है वो भी डायरेक्ट आपके कंप्यूटर पे आ रहा है. अगर आप दुबई में चल रहा था तो आप दिल्ली में बैठे और लंदन में बैठे, कहीं भी उसका जो मूव चल रहे हैं प्लेयर, वो आप देख सकते हैं कंप्यूटर पे. ऐसा लाइव होता है. तो आप चेस बोर्ड पे कुछ हेराफेरी करें वो संभव नहीं है. एक ही तरीका है कि आपको कोई प्रॉम्प्ट कर रहा हो. आप कहीं से आप तो या तो ईयरफोन लगा लें, आपको कोई बाहर से बता रहा हो कि अगला ये मूव चलो, या फिर आपके पास फ़ोन रखा हो, कहीं कुछ भी रखा हो, ऐसा गैजेट रखा हो जिससे आप. तो यहाँ जो खबर मिल रही हो ये कि उनके पास एक फ़ोन था जो उन्होंने रखा हुआ था अपने जैकेट के अंदर. तो थोड़ा सा उनके मूवमेंट को, जो उनके जो ओपोनेंट थे वो काफ़ी कम उम्र के हैं. दुष्यंत शर्मा दिल्ली के हैं और वो 13-14 साल के ही हैं और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं.
तो उनको भी महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। शायद वो ये सोच रहे होंगे कि इंडियन है मैं और हम हमारे देश के हैं, इसमें बदनामी तो होगी। वहां के लेकिन आर्बिटर ने पकड़ा है। आर्बिटर ने उनको सस्पिशियस देखा ये मूव, तो उनको कहा कि आप खड़े हो जाइए और मेरे साथ बाहर आइए, मैं आपको बॉडी चेकअप करना चाहता हूँ। बट इन्होंने डिनाई कर दिया, बोले आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, इस मैच के बाद मैं वो आपसे मिलूंगा। बट फिर दोबारा जब पकड़ा कि कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ, आर्बिटर ने दूर से देखा, फिर कहा कि आप बाहर चलो, तो उन्होंने मना किया, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो हालांकि उन्होंने चेक नहीं कराया, बॉडी चेक के लिए जब उनको लेके जाना चाह रहे थे कि आप वॉशरूम में चले, मैं आपका चेक करना चाहता हूं कि आपने कुछ रखा हुआ है, उन्होंने मना कर दिया। अब उनके पास कुछ था नहीं था तो उनको जाना चाहिए था। तो इस पर वो दावा नहीं कर सकते कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, तो उनको चेक कराना चाहिए था कि देखो हमारे पास कुछ नहीं है। Well, that's the end of the story segment. Let's move on to our next yoga segment with yoga guru Varun Arya. दोस्तों, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको राह दिखा सकते हैं, हेल्दी रहने की टिप्स भी दे सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना, उस पर चलना आपका काम है। एक उम्र के बाद किसी भी चीज़ को अपनी आदत बनाना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए हमें अपने बच्चों में बचपन से ही हेल्दी रहने की अच्छी आदत को शामिल करवाना चाहिए। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे हमारे योगा एक्सपर्ट आचार्य वरुण जी से। आचार्य वरुण जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। धन्यवाद पूनम जी। वरुण जी, किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट करने के लिए हमें उसके फ़ायदे जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये बताइए कि बचपन से योगा करने के क्या फ़ायदे हैं? हमारे पास काफ़ी बच्चे जो हैं वो योग सीखने के लिए जो आते हैं, तो हम उनको देखते हैं, दो समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। एक तो आइज़ की प्रॉब्लम, उनको स्पेक्स लगा रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ब्रेथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, सांस लेने की तकलीफ। सांस लेने की जो तकलीफ है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो ये सब क्रियाएं अगर पेरेंट्स बच्चों को करवाएं, उनको ढालें उस चीज़ में, तो वो बच्चे इन चीज़ों से जो है छुटकारा आराम से उन बच्चों को मिल सकता है। तो वरुण जी, बच्चे जैसे हैं, या बच्चे कह लीजिए या यंगस्टर कह लीजिए, दोनों में जो है करियर बनाने की और पढ़ाई की बहुत टेंशन होती है, बहुत वर्कलोड होता है, तो ऐसे में कंसंट्रेशन करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्या योगा में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे करके वो अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा पाएँ? हाँ बिल्कुल पूनम जी, योग में ऐसी काफ़ी क्रियाएं हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, संस्कृत में एक बात कही है, काकचेष्टावको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसमें सबसे पहले कहा गया है काकचेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थी को। कोई भी जो है टीचर जब पढ़ाता है, तो जैसे हम खड़े हैं, हमारे हाथ में कुछ भी अगर खाने का कुछ सामान है, अगर हमारी नज़र हल्के से इधर से या उधर हुई, तो कौवा जो है तुरंत उसको खींच लेता है। मतलब उस लेवल का कंसंट्रेशन है उस लेवल का कंसंट्रेशन है कि तुरंत जो है कोई भी चीज़ पढ़ने वाली अगर कोई आती है, तो तुरंत जो है विद्यार्थी उसको कैच करे। उसके बाद है काकचेष्टा वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला बिल्कुल जो है एक पैर पर तालाब के अंदर खड़ा रहता है, और जैसे ही मछली उसके पास से आती है, तुरंत वो उसको जो है खींच लेता है। श्वान निद्रा, श्वान यहाँ पर कहा गया है कुत्ते को, डोगी को। जैसे वो सोता है, उसके पास में आप हल्का सा आहट दोगे, तो तुरंत वो जो है खड़े हो जाए। हाँ जी। तो ऐसे ही ऐसा स्लीपिंग पैटर्न जो है, स्लीपिंग उसका जो है पैटर्न होना चाहिए। हल्की से उसको आहट मिलती है, वो तुरंत खड़ा हो। ये नहीं कि जो मतलब इसका आपका कहने का सेंस है कि अलर्ट रहना चाहिए उसको हमेशा। श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, और कम खाने वाला होना चाहिए, भोजन को कम करने वाला होना चाहिए। अगर वो भोजन हल्का सा कम करेगा, तो उसको जो है आलस्य नहीं रहेगा, लेजीपन नहीं रहेगा, शरीर में एक्टिवनेस रहेगी। अल्पाहारी गृह त्यागी, और घर वालों में मोह को हल्का सा दूर रखने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कहीं बोर्डिंग स्कूल में जो है गए हुए हैं स्टडी के लिए, और हमें जो है घर की बहुत याद आ रही है, हॉस्टल में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई, होम सिकनेस आप कह रहे हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस लोग को अब हम जोड़ते हैं योग की क्रियाओं से। जब हम योग की क्रियाएं अगर हम अपनाते हैं, जो भी हम बताएंगे आपको, तो वो क्रियाओं से ये सब जो है हमें फायदे पहुंचेंगे। तो चलिए वरुण जी, दर्शकों को यही आसन करके दिखाते हैं। आप दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में कीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, और एक लंबा गहरा श्वास लीजिएगा। एक बार फिर से
रिलैक्स, आंखें खोल लीजिएगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बाह्य प्राणायाम करते हैं। आज हमारा सबसे पहले जो हमें करना है वो है बाह्य प्राणायाम। बाह्य मीन्स श्वास को बाहर निकाल करके रोकना। सीधे बैठिएगा, एक श्वास लीजिए लंबा गहरा, अब उसको धीरे धीरे से बाहर निकाल दीजिएगा। स्टॉप, रोक दीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा। मित्रों, यह है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में जैसा कि मैंने अभी बताया, बाह्य मीन्स श्वास को बाहर निकाल करके उसको रोक देना। इस प्राणायाम में ज़्यादातर जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और उसको रोकते हैं। और साथ ही साथ में हमें जो है ध्यान लगाना है भ्रिकुटी पर। भ्रिकुटी हमारे दोनों आँखों के बीच का जो स्थान है, इसको भ्रिकुटी बोलते हैं, जहाँ माताएं बहनें जो हैं टीका लगाती हैं, उस जगह पर श्वास को रोक करके रखिएगा। और यह प्राणायाम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारा जो है कंट्रोल करता है हमारी ब्रेथ के ऊपर। रिलैक्स, धीरे धीरे से श्वास ले लीजिएगा। अब हमारा अगला प्राणायाम है, इसी क्रम में जाल अंदर बंद। यह प्राणायाम भी है, इसको आभ्यंतर प्राणायाम हम बोलेंगे। और साथ ही साथ में जाल अंदर बंद लगाना है। बंद 3 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से हमें अभी एक जो है बंद लगाना है, जिसको बोलेंगे हम जाल अंदर बंद। श्वास लीजिएगा लंबा गहरा, श्वास लीजिएगा, अब उसको रोक लीजिएगा और चिन को थ्रोट के ऊपर टच कीजिएगा। टच कीजिएगा, गुड, होल्ड कीजिएगा, रोक करके रखिएगा। यह है आभ्यंतर प्राणायाम विद जाल अंदर बंद। जाल अंदर बंद जो है हमारा पूरा जो थायराइड वगैरह है, जो सिस्टम है, इसको जो है कंट्रोल करता है अच्छे से। थायराइड जो ग्लैंड है इसको एक्टिव करता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। और आभ्यंतर प्राणायाम जो हमने जो है इसमें किया है, उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हमने ऑक्सीजन शरीर के अंदर लिया है, और वो ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे शरीर में अच्छे से जो है जा पाया है, जिससे कोई भी श्वास संबंधी तकलीफ से हमारे जो है बच्चे हैं वो सब बचे रहेंगे। अब धीरे से गर्दन को हटाइएगा, यहाँ से सीधा कीजिएगा गर्दन को, उसके बाद श्वास निकाल दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए याद रखें, हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग। वो थे योगाचार्य वरुण आर्य जी telling us about pranayam, breathing exercises and the importance of focusing and concentrating on your everyday life. Next up is our segment which is आज का स्पेशल। आज के स्पेशल में दूसरे T20 मैच है, मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, और NBA बास्केटबॉल में LA क्लिपर्स एंड डैलस के बीच में मुकाबला। Well, that has been our Aaj special segment. It's time now for us to thank our eminent sports expert and senior sports journalist, Shri Sanjeev Kumar, being with us on the program Sports Cafe. Sanjeev ji, many, many thanks. Thank you very much. It's also time for us to thank our viewers for watching a Sports Cafe early in the morning, and we would request that you connect with us on our social media websites. Facebook, Twitter, YouTube and Instagram. Do connect with us and let us know your views on Sports Cafe program and how we can improve it. Well, it's time for us now to wind up Sports Cafe. Till then, it's namaskar and goodbye.